आज आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं वो है आरएस नॉमेनक्लेचर सिस्टम। जैसे कि पहले क्लासेस में हमने आपको बताया था एक सिस्टम जिसका नाम था EZ सिस्टम। Just like EZ system is the special form of cis-trans isomerism or genetical isomerism. In the same way, RS nomenclature system is the special form of optical isomerism or DL system. Both systems are given by Kahn, Ingold and Prelog. What is the necessities of EZ and RS nomenclature system? Something special compounds which cannot be designated with the help of DL or cis-trans isomerism. To overcome this difficulty to designate the configuration of optical isomerism, a new system that is RS nomenclature system. RS nomenclature system was given by Kahn, Ingold and Prelog system, which can be used to designate the configuration of all molecules containing a symmetric carbon atom or chiral carbon atoms. This system are also known as Kahn, Ingold, Prelog systems or RS system or RS nomenclature system. Now we explain what is the RS nomenclature system. RS, just like EZ, EZ is German word E for and Zazen means क्या था, opposite या across, and Z is also German word zusammen means together. It is just like trans, it is just like cis. In the same way, we can designate R. R is a Latin word rectus. Rectus means right, or clockwise, and S sinister, left, or anti-clockwise. Just like dextro and levo, we can designate right or clockwise, left or anti-clockwise system. So this system was given by Kahn, Ingold and Prelog, known as RS system. In this system, the nomenclature of optically active isomers can be completed in two steps. Step 1. Step 1 कहता है if the atoms or group of atoms which are directly attached to chiral carbon or asymmetric carbon
गिव ए सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग सीक्वेंस रूल। तो पहले रूल में क्या है, गिवन सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ attached atom or group of atoms with central chiral carbon atom। प्रायोरिटी किसके आधार पर, सीक्वेंस रूल के। तो पहला सीक्वेंस रूल फर्स्ट, सीक्वेंस रूल फर्स्ट, सीक्वेंस रूल फर्स्ट क्या कहता है, इफ ऑल एटम्स व्हिच आर अटैच्ड विथ सेंट्रल चाइरल कार्बन एटम्स आर डिफरेंट, all are different, then given a priority and the priority depends upon atomic number, depends upon atomic number, the atoms have higher atomic numbers given higher priority। for example, समय कम, एक एक एग्जाम्पल से विधिवत इसको समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल क्लोरो आयोडो, क्लोरो आयोडो क्लोरो आयोडो मेथेन सल्फोनिक एसिड, मेथेन सल्फोनिक एसिड। नाउ राइट द फार्मूला, SO3H, मीथेन के लिए C, H आयोडो क्लोरो। प्रायोरिटी देखिएगा, एटॉमिक नंबर आयोडीन की सबसे अधिक है, इसलिए उसको देंगे नंबर 1। फिर दूसरे नंबर पर क्लोरीन, तीसरे नंबर पर SO3 और H को मिलेगा 4th नंबर। ये हम देते हैं प्रायोरिटी अगर चारों ग्रुप आपके डिफरेंट हैं जो अटैच्ड है विद चाइरल सेंट्रल कार्बन एटम। सीक्वेंस रूल सेकंड क्या कहता है, सीक्वेंस रूल सेकंड, if rule first fails to relative priority of two groups, then it is determined by similar comparison of next atoms। if two atoms which are attached with chiral carbon atoms are same हो जाने पर हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, वी आर कंपेयर्ड नेक्स्ट एटम्स अटैच्ड टू ईच ऑफ दीज एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स देखिए, फॉर एग्जाम्पल्स 2 ब्यूटेनॉल, फॉर एग्जाम्पल 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल को आप सेट करिए, ये है OH, H, CH2, CH3, CH3, या ये कर दें, इसको CH3 कर दें, इसको CH2 कर दें। अब यहाँ आप सीक्वेंस देखिएगा, हमको पता है एटॉमिक नंबर के आधार पर OH नंबर 1 पाएगा। हमको सिमिलर कहाँ देखना है, इस चाइरल कार्बन से दोनों तरफ कार्बन एटम सेम है। अब इनको हमें प्रायोरिटी देना है CH3 और CH2 CH3। मेथिल और CH3 CH2 में
इसमें हमें प्रायोरिटी देना है CH3 CH2 CH3। यहाँ हम देखते क्या, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन से जुड़े हैं, तो इनका जैसे ये HH, 3 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सम कितना हो जाएगा 3, इसका आ जाएगा 3। अब यहां देखिएगा मेथिलीन ग्रुप, आप एथिल ग्रुप का देखिए, मेथिलीन ग्रुप में एक सी से आप देखिएगा तो एक सी से ये जुड़ा हुआ H, एक H, और इधर क्या जुड़ा है C। अब जोड़ लें तो C का 6 और इसका 2, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8। अब हम गेट प्रायोरिटी किसको दे देंगे, CH2 CH3 को ओवर CH3 के। अब एक नंबर ये मिला तो इसको मिल जाएगा 2 नंबर, इसको मिल जाएगा 3 नंबर, इसको मिल जाएगा 4। इस तरह से अगर रूल फर्स्ट फेल्स होता है कब, जब एक ही चायरल कार्बन से 2 समान कार्बन जुड़ जाएं तो हम प्रायोरिटी इस आधार पर। नंबर थर्ड सीक्वेंस रूल थर्ड। सीक्वेंस रूल थर्ड ये क्या कहता है कि डबली और ट्रिपली बॉन्डेड is considered as equivalent to 2 or 3 such atoms. But if 2 or 3 atoms attached actually, then get priority over doubly and triply bonded. इसका भी एक एग्जाम्पल सही आप समझिए कि फॉर एग्जाम्पल गिल्सरल्डिहाइड, इस गिल्सरल्डिहाइड को आप अरेंज करिए CHO CH2OH HOH कहीं भी किसी तरफ अरेंज करें। हमको यहाँ क्या देखना है कि जब यहाँ की बात करिएगा तो ये H, ये CHO, लेकिन यहां देखोगे तो डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। अब हमको क्या काम करना है कि अगर डबली और ट्रिपली बॉन्डेड है तो हम प्रायोरिटी किसको दे देंगे, डबली और ट्रिपली को। यहाँ इसको तो नंबर 1 मिल जाएगा, इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे तब इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। तो पहला स्टेप कहता है कि आप सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी दीजिए। सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी किसके आधार पर, सीक्वेंस रूल के आधार पर। फिर हम जब बात करते हैं, अब हमारी बात आती है कि हम स्टेप 2 में क्या करेंगे। स्टेप 2 कहता है कि आफ्टर गिवन द सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी of 4 groups which are attached with chiral central carbon atom, the molecule is visualized in such a way that the molecule which have given lowest or last priority, जिसको 4th priority किया है, which are away from us, while the remaining 3 atoms are directed या pointing towards us। जो 4th की प्रायोरिटी है उसको आंख से दूर, और जो बची 3 है वो pointing toward us होनी चाहिए। Now if at these groups our eyes moves in clockwise direction, the configuration given the name R, that is right rectus, right or clockwise from rectus। अगर our eye moves in clockwise direction, then on the other hand if our eyes moves
in anti-clockwise direction, then the configuration is specified as which are derived from the word sinister, means left, or are anti-clockwise direction. Overall, RS nomenclature system can be designated with the help of some examples, as you know. First example आपने देखा BR ICl H, देखिए ब्रोमोक्लोरो आयोडोमेथेन, ब्रोमोक्लोरोआयोडोमेथेन, इनकी अगर आप प्रायोरिटी देखोगे तो सबसे अधिक मिलेगा 1 नंबर आई को, 2 नंबर मिलेगा Br को, Cl को मिलेगा 3। हमने आपको क्या कहा था कि इनके सीक्वेंस आप प्रायोरिटी दे दिया, फिर सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और हमने काम क्या किया कि जो सबसे लोएस्ट था वो हमारी आंख से दूर, और जो बचे 3 थे वो हमारी तरफ पॉइंटिंग टुवर्ड्स। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर पर अगर हम अपनी आइज को मूव कराते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिजिनेट किससे करेंगे, आर से। इसी तरह से सेम आपने किया BR CICl और H, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 एंड 4। यहाँ देखा था डिक्रीजिंग 1 2 3। यहाँ अगर हमने देखा कि ये घूम जाए, हमारी आंख दिखाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसी को हम क्या डिजिनेट कर देंगे, एस सिस्टम से। इसी तरीके से आपने जितने भी एग्जाम्पल अब तक स्टडी किया, जैसे आपने बनाया था SO3H क्लोरो आयोडो मीथेन सल्फोनिक एसिड ICl, नंबर आपने दिया था 1 2 3 और 4। इसको हमें अरेंज कर लेना है, हमको अरेंज क्या कर लेना है, ये CH आपका पॉइंटिंग टुवर्ड्स होगा, ये हो गया 1, ये हो गया Cl जिसको आपने सीक्वेंस में रखा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाता है आर सिस्टम, अगर यही चीज सेम Cl SO3H I और H एंटी क्लॉकवाइज दिखाता है S। यह हो गया हमारा आपका RS सिस्टम का। इसी तरीके से आपने भी 2-ब्यूटेनॉल का सिस्टम बनाया था, ये COH H CH2 CH3 CH3। तो पहले क्या करते हैं, हमने पहले काम किया था प्रायोरिटी दिया, प्रायोरिटी दिया किसको, 2 3 और ये 4। आपने इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे, अरेंज करेंगे CH2 CH3 OH CH3H। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसी को आपने क्लॉकवाइज कर दिया आर सिस्टम, इसी को आपने एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम कर दिया CH2 CH3। नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 एंड ये 4 लास्ट। ये है आपका OH 1 2 3 एंड ये 4। इसी को 3 to 1 कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा एस सिस्टम। ठीक इसी तरह से आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया था एस्टल्डिहाइड का, ग्लिसरॉल्डिहाइड का, सॉरी
ग्लिसरॉल्डिहाइड का आपको एग्जाम्पल मैंने बताया था, CHO H2O और OH। सबसे पहला काम 1 नंबर, इसमें प्रायोरिटी दिया था 2 नंबर, इसको प्रायोरिटी 3 नंबर, इसको 4। अब आपको क्या करना है कि पहले इनको आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी में अरेंज करिए। तो जब आपने ये अरेंज किया, 2 नंबर सेम C, ये हो गया आपका OH, इधर हो गया CH2OH, इधर हो गया H। नंबरिंग 1 2 3। अगर इस सीक्वेंस में गया कि 1 2 3 क्लॉकवाइज, सिस्टम का नाम क्या दोगे? R। अगर यही सेम CHO CH2OH OH और H, अगर आपने इसको सिस्टम दिया 1 2 3, अब अगर ये चलता है 3 2 1, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये था क्लॉकवाइज, ये कैसा चला? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए आप रेक्टस, एंटी क्लॉकवाइज के लिए सिनिस्टर एस। इस तरह से आरएस नॉमेनक्लेचर को आप सिंपली समझ सकते हैं, जो कंप्लीट होगा 2 स्टेप में। पहला स्टेप में है आपको डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स को एक सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल देना है। पहला सीक्वेंस है एटॉमिक नंबर के आधार पर, दूसरा है कि अगर पहला फेल हो जाए तो सिमिलर एटम नेक्स्ट एटम जो है उससे आप कंपेयर कर लीजिए। तीसरा रूल कहता है कि अगर डबली या ट्रिपली बॉन्डेड है तो उसको कंसीडर करोगे 2 और 3 सच एटम्स के लिए, लेकिन एक्चुअल में अगर 2 या 3 एटम्स आपसे जुड़े हुए हैं तो आप डबली और ट्रिपली बॉन्डेड को प्रायोरिटी दे देंगे। ये 3 सीक्वेंस देने के बाद आप क्या करेंगे? इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, जिसमें जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हो उसको मूव कराइए अवे फ्रॉम अस, जो बचे 3 हो उसको डायरेक्टेड पॉइंटिंग टू ऑर्डर्स। और इफ एट दीज 3 ग्रुप्स आवर आइज मूव्स इन क्लॉकवाइज कॉल्ड रेक्टस, एंड इफ एंटी क्लॉकवाइज कॉल्ड सिनिस्टर। इस तरह से हम लोग आरएस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं।